Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with this chapter 3, history, where we are talking about the Delhi Sultans. Delhi Sultans, some of the most powerful people in history who have changed the historical ways of the interaction of the people, and making Delhi and taking Delhi to a very high level, because today whatever is Delhi, the important structures in Delhi and the people in Delhi, the sultans have played a very important role in that. We need to understand this. The kind of role that sultans have played has made Delhi such a worldwide place, a place which is known in the whole world because of its structures. Qutub Minar, built during the time of Delhi Sultans, administration was there, many construction activities had happened. Apart from that, we came to know about some of the great sultans like Muhammad bin Tughlaq, Balban, Ghiyasuddin Balban. All these people who were there, strict administrators. The way they have carried forward the administration in Delhi is very remarkable, and the kind of structures, not only the structures but the administration. Now what we are understanding till now, what we have discussed is that they have taken the garrison town, the places jo ek jagah pe the, the places which were situated at one place, those places and the structures have changed. काफी सारे बदलाव आए इसमें. What we understand is that administration happened, and which emperors have carried on with what kind of an administration, this also we need to understand. So first what we need to see is a closer look to the administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. We will have an idea about the administration, okay, and I mean the way these people have administered the things in Delhi is a lesson for the rulers in the world. Administration and consolidation under Khaljis and Tughlaqs. Okay, Khaljis were there and Tughlaqs were there. These people have consolidated. Consolidated means जो empire में जो छोटी छोटी जगह, the small places which were spread all over the empire at different places, it was all brought at one place. It was all brought under the consolidation, under the rule of the Delhi Sultanate, and एक ही जगह पे ले आए. The empire that was spread all over the country, it was consolidated. It was all the administration was brought in the hands of the sultan. That was the power of their administration. इसी चीज को हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं. Consolidation is that the places which were situated at separate areas, अलग अलग जगह पे जो places situated थे, उन सारी जगहों को वो एक ही जगह पे लेके आए, and they brought it under one ruler. एक ही ruler होंगे, एक ही administrator होंगे, and he would be managing the complete administration according to their own ways. So consolidation of a kingdom as vast as Delhi Sultanate, consolidation of a kingdom as vast as Delhi Sultanate ठीक है.
नीडेड। अब इसको काम करने के लिए इतने बड़े बड़े एम्पायर, इतने द एम्पायर इज सो बिग, it is spread and it is stretched all over. It needed reliable governors and administrators. जब तक काम करने वाले बहुत विश्वास पात्र नहीं होंगे, till the time the people are reliable, administration कैसे चलेगा? एम्परर अकेले तो हर जगह जा जाके नहीं देखेंगे, तो ऐसे लोग चाहिए काम करने के लिए. The such people were needed to work in the empire who can manage the complete administration properly. अच्छे से जो सारा काम चला पाए, ऐसे लोगों की जरूरत थी. सो सल्तनत नीडेड रिलायबल गवर्नर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. गवर्नर्स चाहिए, सही तरीके के होने चाहिए, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स भी सही होने चाहिए. इफ दे आर नॉट प्रॉपर, देन इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द एम्पायर. Now what did these people do? ये जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया? इंस्टेड ऑफ, जैसे बहुत बड़े बड़े जमींदार थे, देयर वेयर लैंडेड chieftains and there were big people who were there in the empire, उनके ऊपर इनको ज्यादा भरोसा नहीं था. Instead of appointing aristocrats and landed chieftains, इन्होंने क्या किया? Instead of अपॉइंटिंग, अब अपॉइंटमेंट अगर इनको देना है तो जो जमींदार टाइप के लोग हैं, लैंडेड चीफटेन्स, लैंडेड चीफटेन्स एज गवर्नर्स, ठीक है, इनको इन्होंने गवर्नर नहीं बनाया. The early Delhi Sultans, what did they do? The early Delhi Sultans appointed, especially Iltutmish, ठीक है, बड़े बड़े पोजीशंस पे, गवर्नर की पोजीशन पे, आर्मी चीफ है, मिनिस्टर्स हैं, इनकी जगह पे पता है जो द हाई लेवल पीपल, इनकी जगह पे इन्होंने क्या किया? दे अपॉइंटेड देयर पर्सनल स्लेव्स. इल्तुतमिश अपॉइंटेड देयर पर्सनल स्लेव्स. जो उनके स्लेव्स थे, जो उनके नौकर टाइप के लोग हुआ करते थे, उनको ये अपॉइंट कर देते थे. एंड दे फेवर देयर स्पेशल स्लेव्स, कि जितना ये लोग जितना काम कर लेंगे, द वे द स्लेव्स कैन वर्क, हु वेर परचेज, जो द स्लेव्स वर्क वाज टू कैरी ऑन द मिलिट्री सर्विस, वो लोग मिलिट्री सर्विस कैरी ऑन करना चाहते थे. देयर स्पेशल स्लेव्स परचेज्ड फॉर, और ये स्लेव्स को वो खरीदते थे. सोचो, पहले इंसानों की खरीद फरोख्त होती थी. परचेज्ड फॉर मिलिट्री सर्विस. दे वर द वंस हु प्रोवाइडेड द मिलिट्री सर्विस. कहीं भी वॉर हो रहा है तो दे वर द पीपल हु अकम्पनीड द एम्परर. एम्परर के साथ ये बड़े बड़े बैटल्स लड़ने के लिए जाते थे. एंड बहुत बिग पोजीशंस वेर गिवन टू देम. द बिग पोजीशंस वेर गिवन टू देम. दे वर अपॉइंटेड बाय दीज रूलर्स एज द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल पीपल इन द एम्पायर. एंड ये क्या था? मिलिट्री सर्विस. इनको क्या कहा जाता था? दे वर कॉल्ड एज बंदागण. These slaves were called as Bandagan. You have heard this name. बंदा, बंदे हैं जो कि सर्व करते हैं, बंदे हैं हम. उसके तरह का गाना कहीं सुना होगा ना? यस, इट्स द सेम. बंदागण है इन पर्शियन में. दिस इज बंदागण इज अ लैंग्वेज, एज अ वर्ड इन पर्शियन.
एंड यही लैंग्वेज यूज वो करते थे फॉर देयर स्लेव्स, अपने नौकरों को ये नौकर नहीं बुलाते थे, दे यूज टू कॉल देम एज बंदागन। गॉट इट? तो एंड इनको ये क्या करते थे, दे यूज टू केयरफुली ट्रेन टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स इन द किंगडम। इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ठीक है, आप सोचो बिल्कुल जो स्लेव टाइप के लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे के ये मिनिस्टर्स बना देते थे। दे यूज टू अपॉइंट देम एज सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स। दीज बंदागण were trained to hold some of the most important offices. Okay? स्लेव्स को इन्होंने मिनिस्टर्स बना दिया, मिलिट्री चीफ बना दिया, क्योंकि इनको इनके ऊपर ज्यादा विश्वास था। They knew that these are the people who can lay down their lives for the sake of their emperor. अपने महाराजा के लिए, अपने राजा के लिए ये अपनी जान तक दे सकते हैं। And they were carefully trained, इनको इन्होंने ट्रेनिंग दी and made them as very powerful people in the empire. तो अब क्या था, they were totally dependent upon their master. इनको देखो एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं आता था। They were the ones who can participate in the war, who can lay down their lives for the master, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा जानकारी नहीं थी इनको। They were not very known person for the administration, so सुल्तान could trust and rely upon। हर एक चीज के लिए वो सुल्तान के सामने, अब देखिए कि ये प्रॉब्लम है, ये कंट्री हमारे ऊपर अटैक करना है, अब आप बताइए क्या करना है। तो emperors were very assured, yes, these are the people, यही लोग हैं जो हमको साथ देंगे हर जगह पे और हमको धोखा नहीं देंगे। तो दे वर अश्योर्ड कि हमारे किंगडम को तो कोई ले ही नहीं सकता, नोबडी कैन टेक आवर किंगडम। इन फैक्ट इनकी सर्विसेज के लिए इनको अगर थोड़ा रिवार्ड दे दिया जाएगा तो दे आर द वंस हु वुड बी मोस्ट reliable and most trusted people who will be looking after the empire. Okay, so sultans could trust and rely upon them. इनके ऊपर पूरा पूरा इनका विश्वास था। इनको पता था कि ये बंदागण इनके साथ कभी भी धोखेबाजी नहीं करेंगे। इस तरह से क्या हुआ कि खलजीज एंड तुगलक्स काफी पावरफुल होते चले गए, क्योंकि दीज पीपल हु वर सर्विंग देम बहुत ही मन लगा के काम करते थे। इफ somebody is serving with full dedication and sense of belongingness to the king, तो ये एक अलग ही तरीके से kings used to be happy. Khaljis and Tughlaqs continued to use Bandagan and also raised people of humble birth. So Khaljis, especially Khaljis and Tughlaqs, got it? खलजीज थे, तुगलक्स थे, दे कंटिन्यू टू यूज बंदागण को ही ये बड़े बड़े पोस्ट देते थे। कंटिन्यूड टू यूज बंदागण, इनको बंदागण कहा जाता था। वी हैव अभी जस्ट नाउ दैट आई टोल्ड यू, एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ एंड ऑल्सो रेज्ड पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। हम्बल बर्थ मीन्स बहुत हाई फाई सोसाइटी के लोगों के ऊपर इनको विश्वास नहीं था। उनको ये लगता था हाई फाई सोसाइटी पीपल कैन डिच देम, कैन गो अगेंस्ट देम, और हो सकता है कि इनके साथ धोखेबाजी भी हो जाए, लेकिन बंदागण के ऊपर ये आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। इस तरह का इनका भरोसा था अपने बंदेगण पे। ओके, फिर क्या हुआ,
the people who were from humble birth were sometimes their client. Client कौन थे? Who is under the protection of another dependent or a hanger on. जो किसी के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है, दैट इज अ क्लाइंट. डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं तो पूरी तरह से डॉक्टर पे विश्वास करते हैं. डॉक्टर जो दवाई देते हैं उसको बिना सोचे हुए खा लेते हैं. खाते कि नहीं? तो वी आर टोटली डिपेंडेंट. सो वी आर द क्लाइंट ऑफ दैट डॉक्टर. वी हैव फुल फेथ ऑन दैट डॉक्टर, इजंट इट? Until and unless you have faith, how can you carry forward your activities? किसी भी तरह से एक्टिविटीज आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं. Who were often their clients to high political positions. Humble birth, who were often their client, were given high positions. बहुत ऊंची ऊंची पोजीशन पे इनको रखा जाता था. Kings have to totally rely on them. पूरी तरह से ये इनके ऊपर विश्वास करते थे. This also introduced an element of political instability. यहाँ पे क्या हुआ? एक प्रॉब्लम हमको नजर आती है कि there was political instability. बहुत ज्यादा टिके हुए नहीं थे ये लोग. टिके हुए नहीं मतलब कि दे वेयर लॉयल टू दी एम्परर जैसा कहते थे वैसा ही काम ये लोग करते थे. अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहते थे. लेकिन क्या हुआ? स्लेव्स एंड क्लाइंट्स, दे वर रॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पेट्रन्स बट नॉट टू देयर हेयर्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बंदागण है, क्लाइंट है, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड दैट स्लेव्स एंड क्लाइंट्स were loyal to their masters but not to their heirs. Heirs जो उनके, अब जैसे कि सपोज इल्तुतमिश इज देयर. इल्तुतमिश हैज अपॉइंटेड सम बंदागण. कुछ लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये बंदागण उनके लिए बहुत लॉयल है. लेकिन इल्तुतमिश के जो बेटे हैं या उनकी बेटी है उनके लिए वो लॉयल नहीं है. दे सेड कि आपके पिताजी की हमने सेवा की, कोई जरूरी थोड़ी कि हम आपकी भी सेवा करेंगे. सो अब नए सुल्तान जो बन रहे हैं उनके अपने सर्वेंट्स हैं. न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट्स. New sultans had their own servants कह लो, बंदागण कह लो, ठीक है? एक एम्परर ने जिन बंदागण को बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पोजीशन दिया, ठीक है? वन एम्परर हैज मेड अ बंदागण अ मिनिस्टर बट हिज सन और हिज डॉटर विल से नहीं भाई हमारे अपने बंदागण है, अब तुम हट जाओ, यू आर नो मोर द मिनिस्टर. आपने मेरे पिताजी की बहुत सेवा की, धन्यवाद, अब हमारे अपने बंदागण हैं, हम उनको अब मिनिस्टर बनाएंगे. तो क्या हुआ? द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोबिलिटी. पुराने काम करने वाले और नए काम करने वालों के बीच में अक्सर झगड़ा होता रहता था. ओके, सो एक्सेशन, नए सुल्तान जो थे, एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क, ठीक है? नए एम्परर आ गए. ऑफन सॉ conflict between the old and new nobility.
नए और पुराने के बीच में एक बहुत ही टेंस्ड वाला माहौल रहता था। नए वाले लोग जो है वो पुराने वालों को नहीं मानते थे, वो अपने लोगों को लेके आते थे। इसके वजह से क्या था, देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन। गॉट इट? बट यू नो दीज सुल्तान्स, दे हैव डन सम ग्रेट वर्क। कुछ बहुत ही अद्भुत काम इन लोगों ने किया था। वो क्या काम किया था वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। दिस इज अ सरप्राइज। कम लेट्स सी इट इन द बुक इटसेल्फ। So students, yesterday we have done this map and we had discussed about the campaigns of Alauddin Khilji. Just see it is mentioned here. The Alauddin Khilji from Delhi, how did he spread his rule? Delhi say how the rule was spread and how his campaign was spread to South India. That is what is very clearly mentioned here. यहाँ पे this is mentioned that the campaignings that was happening, it was very much effectively carried on in the South India. And किस किस जगह पे किस ईयर में वो गए, you have to remember this. ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी's campaign. After that आज जो हमने बात की, आई टोल्ड यू दैट दिल्ली सुल्तनत पीपल हैव डन लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। इनको बिल्डिंग्स बनाने का बहुत शौक था। मोस्ट ऑफ द दिल्ली रूलर्स ये बिल्डिंग्स बनवाते थे और दीज बिल्डिंग्स वेयर नोन बाय देयर नेम्स। आज तक हिस्ट्री में देयर नेम इज़ रिटन बिकॉज सम ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर्स they have made जो कि कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ओके, so here we have, यहाँ पे we can see the mosque that is here, the Kuwal Islam mosque, okay, and the minaret। ये mosque है, आप ये देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क कितना ब्यूटीफुल बनाया है। एंड जो दिल्ली सुल्तान्स थे ना, द स्ट्रक्चर्स दैट दे यूज टू मेक, उसमें वन थिंग दैट वाज वेरी कॉमन वाज दैट गार्डन्स जरूर होते थे। दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डन्स। द एनी स्ट्रक्चर दैट दे हैव मेड, कोई भी बिल्डिंग जो बनवाते थे उसके साथ दे यूज टू गेट बिग गार्डन्स कंस्ट्रक्टेड। So this is you can see the mosque is here, ये रहा mosque, and then you can see the minaret। कुतुब मीनार में ही ये mosque है। कभी मौका मिले, whenever you go to the कुतुब मीनार you will find this mosque जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम mosque and minaret। कब बना था? It was made 12th century में। And this was the congregational mosque. Now what is congregational mosque? Congregational mosque means जहाँ सारे लोग बैठ के मिल के साथ में प्रेयर करते हैं। That mosque is called as congregational mosque। The first city, ये यहाँ पे साथ में सब लोग प्रेयर करते थे। That's why it was called as congregational mosque and first city that was built by Delhi Sultans। Okay, Delhi Sultans ने ये पहली एक सिटी बनाई थी जिसका कि which was very big and which very well known in different parts of the world। पूरी दुनिया में दिल्ली का बहुत ज़्यादा नाम था। एंड ये कहाँ से हमको पता चलता है? फ्रॉम वेयर डू वी कम टू नो अबाउट इट? It is described in the chronicles as Dehli-e-Kohna। Dehli-e-Kohna, Dehli-e-Kohna, this is a Persian terminology जिसका मतलब होता है old city, पुराना शहर। Dehli-e-Kohna is the old city। and mosque क्या था? इसको इन्होंने बहुत बड़ा किया। द मॉस्क वॉज एनलार्ज्ड बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने पहले खाली मॉस्क, छोटा सा एक मॉस्क बना था, बाद में
इस मॉस्क को, इस मस्जिद को बहुत बड़ा बना दिया गया। एंड मीनार वॉज बिल्ट बाय टू सुल्तान्स, दो सुल्तान ने मिलकर इस मीनार को बनाया था। इट वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक एंड फिनिश्ड बाय इल्तुतमिश। Okay, so that's why Qutub Minar, one of the very well known structures in the Indian history and in the world also. Okay, अब ये देखो यहाँ पे, what is a masjid? मस्जिद का मतलब क्या होता है? मस्जिद is a mosque. A mosque is called masjid in Arabic. इसका मतलब होता है जहाँ पे Muslims prostrate in reverence to Allah. मुस्लिम्स, प्रोस्ट्रेट मीन्स झुक के प्रणाम करना, दैट इज प्रोस्ट्रेट, बिल्कुल ज़मीन को छूते हैं। तो जहाँ पे मुस्लिम्स अल्लाह के रेस्पेक्ट में पूरा झुक के अल्लाह को प्रणाम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉस्क। कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क मीन्स, जस्ट सी, मस्जिद जामी और जामा मस्जिद। जमा, जमा मतलब क्या? जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, द पीपल वेयर गेट टुगेदर। जमा तो आपको पता है ना, जमा मतलब इकट्ठा होना, सो गेटिंग टुगेदर। एंड मुस्लिम्स यहाँ पे अपना प्रेयर पढ़ते हैं, दे रीड देयर नमाज टुगेदर। एंड मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, ये जो ग्रुप होता है, दे चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड, जो सबसे रेस्पेक्टेड लर्नेड पीपल मेल होते हैं ना, उनको वो अपना लीडर हैं। द मोस्ट लर्नेड मैन इन द ग्रुप इज मेड लीडर एंड दैट लीडर इज कॉल्ड एज इमाम। इस लीडर को हम क्या कहते हैं? द लीडर इज कॉल्ड एज इमाम। तो प्रेयर्स के लिए क्या होता है ना, इमाम इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पीपल अमंग्स पर्सन अमंग्स द ग्रुप, जो कि प्रेयर कहते हैं, लोगों को अल्लाह का रास्ता बताते हैं। एंड ही ऑल्सो डिलीवर्स द सर्मन, ज्ञान की बातें बताते हैं लोगों को, दैट इज कॉल्ड एज खुतबा। ऑल द knowledgeable things are released here, all the knowledgeable things are said here during the Friday prayer. फ्राइडे प्रेयर के टाइम पे ये अपनी सारी बातें लोगों को बताते हैं। पीपल कम हियर, गैदर हियर, जमा होते हैं, जमा हो के अल्लाह को याद करते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज जमा मस्जिद। एंड फ्राइडे प्रेयर के बाद लोगों को अल्लाह के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज खुतबा। एंड इन इंग्लिश इट इज, प्रेयर के टाइम है, दे स्टैंड फेसिंग टुवर्ड्स द मेक्का। मक्का मदीना जो है, मक्का इज़ द मोस्ट होली प्लेस ऑफ द मुस्लिम्स, उस तरफ मुंह करके ये खड़े होते हैं। एंड इंडिया में भी जो पश्चिम के तरफ मुंह करते हैं, दे फेस टूवर्ड्स द वेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड एज किबला। इसको क्या कहते हैं? इसको किबला कहते हैं। गॉट इट? वेस्ट के तरफ मुंह करके खड़े होके जो प्रेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज किबला। ओके, तो दिस इज़ हाउ द मुस्लिम्स प्रे। ये देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है, दिस इज़ एक और मॉस्क की पिक्चर दी हुई है, दैट इज़ द बेगमपुरी मॉस्क। बना कब था? इट वॉज मेड बाय मोहम्मद तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तुगलक इज़ वन ऑफ द मोस्ट prominent rulers of the Sultanate period. Delhi Sultans में he is one of the most respectable rulers, मोहम्मद बिन तुगलक। एंड मेन मॉस्क ऑफ जहाँ पना, ठीक है, जहाँ पना, जहाँ पे कि पूरे द वर्ल्ड टेक्स रेस्ट, जहाँ, जहाँ मतलब द होल वर्ल्ड, एंड पनाह मीन्स टेकिंग रेस्ट, going in the honor of somebody. तो जहाँ पनाह है, सैंक्चुरी ऑफ द वर्ल्ड, हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, दिल्ली में उन्होंने ये बनवाया था। दिस स्ट्रक्चर इज स्टिल देयर इन दिल्ली, वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल एंड वेल नोन प्लेसेस। एक आपने ये देखा, कुआतुल इस्लाम मॉस्क इज देयर, एंड अनदर मॉस्क दैट इज गिवन हियर इज द बेगमपुरी मॉस्क विच वॉज बिल्ड ड्यूरिंग मोहम्मद तुगलक। एक और मॉस्क दिया हुआ है, जस्ट सी,
दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारे, they have made many mosques. They were very religious people, totally devoted and dedicated to all over. And these, इससे क्या था, they used to claim to be protectors of Islam and Muslims. मुस्लिम्स के और इस्लाम के ये प्रोटेक्टर थे. मॉस्क ऑल्सो क्रिएटेड द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स. जो लोग अल्लाह पे विश्वास करते हैं, उनके ऊपर बिलीव करते हैं, उनके लिए ही ये मॉस्क बनाया गया था, सो दैट पीपल कैन कम एंड ऑफर द प्रेयर. ओके, ये कुछ मॉस्क की पिक्चर्स हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर्स. मॉस्क ऑफ जमाली कमाली, ये 1520s में बना था. एंड मोथ की मस्जिद सिकंदर लोदी ने बनवाया था. सो यू कैन सी so many type of mosques that were built by the sultans. This is what I wanted to show you. Okay children, so this is the end of the video today. We'll meet in the next video. Till then children, thank you so much and all the best to you.